بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ افراطی ہندوؤں، تکفیری مسلمانوں اور اسی طرح صہیونیوں میں کیوں اس قدر اشتراک پایا جاتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ان کے رویوں، ان کے سوچوں اور اسی طرح ان کے اعمال میں کیوں اس قدر مماثلت پائی جاتی ہے۔ آئیے ہم ان چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہندوتوا کو ہم ڈیفائن کریں گے کہ ہندوتوا ہندو مذہب کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے کہ جسے دامودر ساورکر نے 1922 میں یہ نظریہ پیش کیا۔ اس کے مطابق پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سری لنکا اور اس طرح حتی افغانستان اور سعودیہ تک بھی وہ ان علاقوں کو لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ علاقے در حقیقت ہندو سرزمینیں ہیں، یعنی ہندوؤں کا حق ہے کہ وہ ان سرزمینوں کے اوپر اپنی حکومت کو قائم کریں۔ اور اس تفکر کی بیس پر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ RSS نام کی جماعت، جو ان کی ایک نظریاتی جماعت ہے جس میں یہ لوگوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں اس سوچ کی بنیاد کے اوپر اور لوگوں کو باقاعدہ اس کے مطابق تربیت کرتے ہیں، اور حتی جو ابھی جماعت ہے BJP، جو حاکم جماعت ہے انڈیا کے اوپر، وہ بھی اس سوچ سے متاثر ہمیں نظر آتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف صہیونزم کی جانب کہ صہیونزم در حقیقت یہودیت کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ 1864 میں تھیوڈور ہرٹزل نے پہلی بار اس نظریے کو سامنے رکھا اور اس کے مطابق در حقیقت جو فلسطین کا علاقہ تھا اور فلسطین سے باہر کے جو علاقے تھے، شام ہو گیا، عراق، اردن اور اسی طرح سیریا، حتیٰ جو ہے خانہ کعبہ تک بھی جو ہے وہ اپنی حدود کو بڑھاتے ہیں، یعنی یہ تمام علاقے یہاں پر یہودیوں کی آبادی بسنی چاہیے اور ایک صہیونی ریاست یہاں پر تشکیل پانی چاہیے۔ اور اسی تفکر کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ 1948 میں ایک غاصب ریاست کا قیام ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے تفکر کی طرف، وہ ہے تکفیریت۔ تکفیریت در حقیقت مسلمانوں میں اور اسلام کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے، یعنی اسلام کو اپنی سوچ کے مطابق بعض گروہوں نے، بعض شخصیات نے اس طرح سے پیش کیا کہ وہ اپنے سوا باقی جتنے مسلمان ممالک ہیں وہ ان کو مسلمان تصور نہیں کرتے، اور حتیٰ اس حد تک افراد کر جاتے ہیں کہ ان کی جان و مال کو غصب کرنا، ان کو قتل کرنا تک بھی وہ جائز قرار دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان کے مابین اشتراکات کی طرف کہ کون سے نکات ہیں و کون سے پوائنٹ ہیں جو ان کے مابین، ان تین تفکر و ان تین تھیوریز کے مابین مشترک ہیں۔ تو سب سے پہلا نقطہ و سب سے پہلا پوائنٹ جو ان میں مشترک ہے وہ ہے وائلنس کا، یعنی تشدد کا۔ اگر ہم دیکھیں ان تینوں تفکر کو، صہیونزم کو، تکفیریت کو اور ہندوتوا کو، تو ان میں تشدد پایا جاتا ہے، وائلنس پایا جاتا ہے، یعنی اپنے مخالف کے مقابل میں یا جن کو یہ اپنا دشمن تصور کرتے ہیں ان کی بابت یہ تشدد کے قائل ہیں۔ یعنی اگر ان کے سامنے کوئی ان کا دشمن آ جائے یا مخالف آ جائے، اس پر یہ بے تحاشا ظلم کرتے ہیں۔ ہمیں دیکھیں اگر ہم متعدد علاقوں میں، مثلا ابھی اگر انڈیا کے اندر ہی دیکھیں تو یہ ہندوتوا اب تک گائے کے نام پر ہزاروں یا سینکڑوں مسلمانوں کو قتل کر چکا ہے، اور ان کا یہ نعرہ ہے کہ ہم ایسا ماحول کریٹ کریں گے انڈیا کے اندر کہ کوئی بھی ہندو مسلمان کے ساتھ نہ اقتصادی طور پر روابط قائم کر سکے گا، نہ سیاسی طور پر روابط قائم کر سکے گا اور نہ سماجی طور پر روابط قائم کر سکے گا۔ اور یہی تفکر اگر ہم تکفیریوں میں دیکھیں تو تکفیریوں میں بھی یہی سوچ پائی جاتی ہے۔ اگر ہم پاکستان کا ہی مشاہدہ کریں، پاکستان کے معاشرے کا، تو حق نواز جنگوی جیسے افراد اور اورنگزیب فاروقی جیسے افراد ان نعروں کا پرچار کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر ایک ایسا ماحول بنائیں گے کہ کوئی سنی بھی جو ہے کسی شیعہ کے ساتھ جو ہے اپنے روابط کو برقرار نہیں کرے گا۔ حتیٰ یہ تکفیری سوچ اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اس وقت یہ شیعوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے، لیکن یوں نہیں کہ یہ شیعوں کو اپنا رقیب سمجھتی ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کو اپنا دشمن تصور کرتی ہے۔ چونکہ سب سے پہلے انہوں نے تشیع کو ٹارگٹ کرنا ہے، تشیع کو ختم کرنا ہے، اس کے بعد دوسروں کی طرف آنا ہے، تو اس لیے پہلے جو ہے انہوں نے تشیع کو سامنے رکھا ہوا ہے۔ بہو اسی طرح وہی طریقہ کہ جو انڈیا یا مثلا RSS سے جو متاثر پارٹی ہے وہ رویہ اپنا رہی ہے انڈیا کے اندر کہ پہلے سنیوں کو ٹارگٹ کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ شیعوں کی طرف آیا جائے۔ تو تشدد ان میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اگر ہم صہیونی جو باشندے ہیں اور صہیونی تفکر کے حامل جو افراد ہیں ان کے لیڈران کو دیکھیں، مثلا ابھی جو ان کے سابقہ وزیر دفاع تھے اسرائیل کے یوآف گالانڈ، یہ باقاعدہ ٹی وی کے اوپر وہ کھلا جو ہے میڈیا کے اوپر کہتے ہیں کہ
फलस्तीनी जो है इंसानों से बदतर है, यानी हैवान हैं, हैवानों से भी बदतर है, यानी इंसान भी तसव्वुर नहीं करते और हैवानों से भी बदतर करार देते हैं, यानी इस कदर तशद्दुद के कायल हैं। और फिर हम देखते हैं कि इसी तफक्कुर की बिना पर फलस्तीनियों के आज़ा तक निकाल देते हैं, फलस्तीनियों का कत्लेआम भी करते हैं और इसको जो है जायज़ भी करार देते हैं। इसी तरह हम अगर तकफीरियों के मामले में देखें तो तकफीरी भी मुतअद्दिद इलाकों में, मसलन शाम के अंदर जब ये बशार अल असद का खात्मा हुआ हुकूमत का, तो इसके बाद तहरीर शाम ने जो कत्लेआम किया वो वाकईन लोगों को हैरान कर गया कि किस कदर लोगों का कत्लेआम किया गया, लोगों के सर काटे गए और उनसे फुटबॉलें खेली गई। और हम अपने पाकिस्तान में देखें तो इस तफक्कुर के हामिल जो अफराद हैं, इन्होंने क्या क्या मजालिम नहीं ढहाए अपने हरीफ मुकाबिल के ऊपर। और हम देखते हैं कि पाराचिनार में शिया जवानों के सरों को काट कर उनके सरों से फुटबॉल खेली गई, हत्ता फौजी पाकिस्तानी फौज के जवानों के साथ भी ये हरकत की गई। यानी इनमें पहला नुक्ता मुश्तरक ये है कि इनमें तशद्दुद पाया जाता है और इनमें वायलेंस पाया जाता है। दूसरा नुक्ता मुश्तरक जो इन तीन नजरियात व इन तीन थ्योरीज में पाया जाता है वो है मुसलमान दुश्मनी व मुसलमान को अपने अहदाफ में एक रुकावट के तौर पर देखना। अगर हम देखें कि सेहूनी किसको अपना रकीब समझते हैं इस खित्ते के अंदर, मुसलमान, क्योंकि वो समझते हैं कि इनके अहदाफ हैं, इनके मुकाबिल जो रुकावट बनेंगे वो मुसलमान हैं, यानी मुसलमान जब तक हैं हम अपने अहदाफ को अचीव नहीं कर सकते। और दूसरा जो हिंदुत्व तफक्कुर है वो भी इसी सोच के कायल है कि अगर हमने अपने हिंदुत्व तफक्कुर के मुताबिक अगर हमने आगे चलना है और अपने अहदाफ को अचीव करना है तो इसके मुकाबिल में एक बड़ा हरीफ और एक बड़ी रुकावट और एक बड़ा दरवाजा जो हमारे सामने है वो है मुसलमान। जब तक हम इन मुसलमानों का खात्मा नहीं करेंगे या उन्हें कमजोर नहीं करेंगे उस वक़्त तक हम अपने अहदाफ को हासिल नहीं कर सकेंगे। और इसी तरह हम तकफीरियों को भी देखें तो तकफीरी भी यही सोच रखते हैं कि जब तक इस्लामी मसालिक यहाँ पर पाए जाते हैं हम अपनी तकफीरी सोच को तमाम इस्लामी ममालिक के ऊपर हावी व मुसल्लत नहीं कर सकते। इसी वजह से आप देखते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी का माहौल बनाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद जाहिर करते हैं। हत्ता आप ये देखिए कि इंडिया में सीसीए का इन्होंने एक्ट पास किया और इसके मुताबिक जो है कोई भी हिंदू हो, किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता हो, वो आकर इंडिया में आबाद हो सकता है, लेकिन अगर एक मुसलमान वहां जाना चाहे तो मुसलमान को वो शहरियत नहीं देंगे। लेकिन हिंदू, सिख और जो दीगर इनसे जो रिलेटेड, हिंदुइज्म से जो रिलेटेड अध्ययन है, उनके अगर उससे कोई ताल्लुक रखता हो शख्स तो उसको ये नेशनलिटी प्रोवाइड कर लेते हैं। इसी तरह हम देखें इसराइल के तफक्कुर से तो इसराइल भी जो है जो भी यहूदी जिस दुनिया का भी बाशिंदा हो, जिस मुल्क का भी बाशिंदा हो, उसको ये नेशनलिटी प्रोवाइड कर लेते हैं। अभी जैसा कि देखा कि आपने न्यूयॉर्क के इंतखाबात हुए और उसमें ज़ोहरान ममदानी जीता। ज़ोहरान ममदानी चूँकि मारूफ हैं कि वो सेहूनी मुखालिफ हैं, तो इसी वजह से इस्राएली हुकूमत ने फौरन से ये एलामिया जारी किया कि जो भी यहूदी न्यूयॉर्क में रहते हैं फौरन से वो इसराइल की जानिब आए और इसराइल उन्हें नेशनलिटी प्रोवाइड करेगा। और तकफीरी भी यही है, तकफीरी सोच भी यही है कि तकफीरी अपने जो हम सोच है, हम फिक्र अफराद है, उनको ये नेशनलिटी प्रोवाइड करते हैं किसी मुल्क। अभी सीरिया के अंदर ही हम देखें कि अवीगोर कबीला जो चीनी है, ताजिकी, उज़्बेकी और दीगर जो है उनको ये नेशनलिटी फराहम कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तालिबान की गवर्नमेंट को देखें तो तालिबान भी जितने मुख्तलिफ ममालिक से उठकर इनके नाम निहाद जिहाद में शामिल हुए थे उनको ये नेशनलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी मुसलमान दुश्मनी इनका एक ऐसा नुक्ता है कि जो इन तीनों में मुश्तरक पाया जाता है और ये मुसलमानों को अपने अहदाफ में एक बड़ी रुकावट के तौर पर देखते हैं। तीसरा नुक्ता जो इन तीनों नजरियात में पाया जाता है वो अपनी सरजमीन का दायरा बढ़ाना है। यानी ये जिस सरजमीन में अभी रह रहे हैं वो ये नहीं समझते कि ये जमीन हमारे लिए काफी है, बल्कि इस सरजमीन को ये मजीद बढ़ाना चाहते हैं, मजीद वुसअत देना चाहते हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि सेहुनिज्म में ग्रेटर इसराइल का तफक्कुर पाया जाता है। यानी इसराइल जो अभी हालिया जो जिस बाउंड्रीज की हद तक महदूद है, ये इस हद तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि करबला तक भी ये जाएगा, नजफ तक भी जाएगा और दूसरी तरफ से ये मक्का तक भी जाएगा। यानी जो नारा लगाते हैं फ्रॉम द रिवर टू द सी, यानी नील से फुरात तक इन्होंने कब्जा करना है और अपने इस जो बाउंड्री है उसको
वुसअत देनी है। जैसे कि ट्रम्प ने कुछ अरसा कबल कहा था कि इसराइल एक बहुत छोटा सा मुल्क है और अपने दुश्मनों के मुकाबले में ये अपना दिफा भी नहीं कर सकता, क्योंकि महदूद जुग्राफिया अपना रखता है, इसलिए इसका जुग्राफिया बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसी वजह से ट्रम्प ने जूलान को रस्मी तौर पर इसराइल का हिस्सा कबूल कर लिया। और आहिस्ता आहिस्ता इसराइल का हदफ भी यही है कि अपना जो है वो ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है उसको वो अंजाम तक पहुंचाए। और हिंदुओं के तफक्कुर से देखें, हिंदुत्व में जो तफक्कुर पाया जाता है वो भी यही है कि वो अपने सरजमीन को बढ़ाना चाहते हैं, अपने जुग्राफिया को बढ़ाना चाहते हैं, और इनमें अखंड भारत का तफक्कुर पाया जाता है। वो भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, भूटान, श्रीलंका और हत्ता बाज इफराती तो इस हद तक जाते हैं कि वो कहते हैं कि सऊदी अरब भी जो है वो हिंदुत्व में और अखंड भारत का हिस्सा बनेगा। यानी ये जो मौजूदा जुग्राफिया है ये काफी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम यहाँ पर हजारों साल से हिंदू इन सरजमीनों के ऊपर आबाद थे, और ये हमारा बुनियादी हक है कि हम फिर से इन सरजमीनों को अपने कंट्रोल में ले लें। जैसे सेहूनी कहते हैं कि 3000 साल पहले, 4000 साल पहले हमारे आबा व अजदाद यहाँ पर रहते थे, बस ये हमारा कानूनी हक है कि हम जो यहाँ के मकामी बाशिंदे हैं इनको उठाकर बाहर कर दें और हम यहाँ पर आकर आबाद हो जाएं। और तकफीरी भी यही सोच रखते हैं। तकफीरी भी कहते हैं कि जितने भी मुसलमान मुल्कों में दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, दीगर मसालिक के लोग हैं, हत्ता इस्लाम के अंदर जो जितने फिरके पाए जाते हैं वो सब के सब इन सरजमीनों से निकल जाएं और फकत हम तकफीरी ही इन सरजमीनों पर रहें। अगरचे इनमें ये सोच व ये तफक्कुर नहीं पाया जाता कि हम जो है ज़मीनों को फैलाएं, क्योंकि अभी ये किसी एक मुल्क के ऊपर अपनी हुकूमत उस तरह बना नहीं पाए। अगर बिलफर्ज ये बना लेते हैं तो बैद नहीं है कि ऐसा तसव्वुर व ऐसा तफक्कुर इनमें भी पैदा हो जाए। मगर अभी तक ये है कि ये जिन मुल्कों में रहते हैं वहां पर ये बाकी मसालिक का वजूद बर्दाश्त नहीं करते। आखिरी पॉइंट जो इनमें नुक्ता इश्तराक है वो है इस्तेमारी व इस्तिकबारी ताकतों का आलाकार होना। अगर आप तारीख में जाएं और जायजा लें तो हमें ये देखने को मिलता है कि दर हकीकत इन 3 नजरियात को बनाने में और इन 3 नजरियात को फैलाने में इस्तेमारी और इस्तिकबारी ताकतों का बड़ा हाथ है। यानी इस्तेमारी और इस्तिकबारी ताकतों ने यहाँ पर इन नजरियात के बीज बोए ताकि अपने मजमूम मकासद को इस खित्ते के अंदर इन अहदाफ को उन मकासद को हासिल करते रहें। अगरचे वो आज हम देखते हैं कि अगरचे वो फिजिकल तौर पर इस खित्ते से निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है वो अपने इन पिट्ठुओं के जरिए से जो है इस खित्ते को अपना यरगमाली बनाए हुए हैं। अगर हम सेहुनिज्म को देखें तो 1917 में बालफोर डिक्लेरेशन के जरिए से उस वक्त की इस्तेमारी ताकत बरतानिया ने यहाँ पर सेहुनिज्म के बीज बोए और उनको बाकायदा एक रियासत बनाकर दी, गासिब रियासत, और जिसकी बिना पर इसराइल वजूद में आया। यानी दर हकीकत इसराइल को बनाने में इस्तेमारी ताकत जो है वो दखील थी, और पूरी दुनिया से यहूदियों को जमा करके इन्होंने इस रियासत के अंदर आबाद किया। और हम देखें हिंदुत्व को भी, तो हिंदुत्व भी 1922 में जो है ये तफक्कुर सामने आया है। तो दर हकीकत 1922 में भी इंडिया के अंदर व बर्रे सगीर के ऊपर जो है सल्तनत बरतानिया का राज था। और बरतानिया, आपको मालूम है कि इनका हमेशा से ये शिआर रहा कि डिवाइड एंड रूल, यानी तकसीम करो लोगों को और हुकूमत करो। क्योंकि ये जब इस्तेमारी ताकत बरतानिया आया इस खित्ते के अंदर तो यहाँ पर इसे रकीब के तौर पर फकत मुसलमान नजर आए, क्योंकि मुसलमान उस वक्त ताकत में थे और इस खित्ते में मुसलमान हुक्मरानी कर रहे थे। तो इन्हें मुसलमानों को दबाने के लिए इन्होंने हिंदुओं को उठाया और हिंदुओं को पावर दी, हिंदुओं के अंदर इसे तफक्कुरात को इन्होंने पैदा किया। आज आप देखें आरएसएस के जो अपने आप को हिंदुओं का जो है निजात दहिंदा समझती है, वो कभी भी इस्तेमारी ताकतों के बारे में बात नहीं करेगी। वो कभी भी बरतानिया ने जो इतने मजालिम यहाँ डाए, 250 साल जो इतने मजालिम इन्होंने डाए, कभी वो उन मजालिम के ऊपर बात नहीं करेगी। वो बात करेगी मुसलमानों के खिलाफ, वो मुसलमान दुश्मनी के ऊपर जो है वो बात करेगी। इसी तरह हम तकफीरियों में भी देखें तो तकफीरियत का बीज बोने वाले और तकफीरियत को फैलाने में भी इस्तिकबारी ताकतों का हाथ है। यानी बरतानिया का जो नाखलफ बेटा था, यानी जिसे वो अपना जानशीन बनाकर छोड़ गया यहाँ पर अमेरिका, उसने इन सारे तकफीरी ग्रुपों को पैदा किया और तकफीरी सोच को यहाँ पर परवान चढ़ाया, जिसे मोहम्मद बिन सलमान खुद इंटरव्यू में अपना बाकायदा जो है वो
कह चुके हैं कि हमने मगरिब के कहने पर यहाँ पर वहाबियत की सोच को फैलाया, और ट्रंप बारहा कह चुके हैं कि दाइश को अमेरिका नहीं बनाया, यानी ओबामा के दौर में ये दाइश हमने बनाई। बस यहाँ से मालूम होता है कि ये तीन थ्योरीज व ये तीन नजरियात इस्तेमारी व इस्तिकबारी ताकतों की मजमूम मकासद व मजमूम अहदाफ तक पहुंचने के लिए जो है ये एक आले के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। अब हम नतीजा लेते हैं कि ये जो तीन तफक्कुरात के जो वाकईन ज़हर कातिल की मानंद है, इससे किस तरह बच सकते हैं और किस तरह हम इनके चुंगल से निकल कर और इस्तेमारी ताकतों के और इस्तिकबारी ताकतों के चुंगल से हम निकल सकते हैं और निजात पा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी अमर खुसूसन मुसलमानों के लिए यह है कि मुसलमान आपस में मुत्तहिद हों, और वो दाखिली जो हुक्मरान हैं बाज़ ममालिक के ऊपर के जो वाक़ईन अमेरिका और इसराइल के पिट्ठू हैं और उन्होंने उनको हुकूमत दी हुई है, वो उनके चक्रों में आपस में इत्तेहाद को ख़त्म न करें, नाबूद न करें इन जैसी शख्सियात की वजह से। क्योंकि इन जैसी शख्सियात दाखिली तौर पर भी जो कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि मजहबी लोग हुकूमत में ना आए, मजहबी लोग इक़्तिदार में ना आए, उनके लिए इस्तेमाल होती हैं इस तरह की अहज़ाब व इस तरह की पार्टीज। और बैरूनी जो खारजी जो ताकतें हैं, बैनुल अक़वामी जो ताकतें हैं अमेरिका इसराइल, उनका भी आलाकार बनती है और मुसलमानों को मुत्तहिद होने से रोकती हैं। इसलिए ज़रूरी अमर है कि मुसलमान आपस में इत्तेहाद कायम करें, और दूसरा ये कि सियासी तौर पर अपना शऊर बढ़ाएं, क्योंकि जब तक हम सियासी शऊर अपना नहीं बढ़ाएंगे हम हमेशा इन्हीं के गुलाम रहेंगे, और हमेशा वही पुरानी पॉलिसियां, वही गिटी पिटी पॉलिसियां जो है फिर से हम पर लागू की जाएंगी, और हमें तकसीम किया जाएगा, तकसीम दर तकसीम किया जाएगा। एक मसलक के लोगों को भी मुख्तलिफ चीज़ों में तकसीम किया जाएगा, एक हिज़्ब के भी मुख्तलिफ धड़े बनाए जाएंगे। इसी वजह से सियासी शऊर बहुत ही ज़रूरी अमर है ताकि हम इन चुंगलों से नजात पा सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।